Chalo, we have completed the formula for skewness. Now we are going to start with sums. Started with question number 2. Find Carl Pearson's coefficient of skewness. મારી સાથે જ ગણજો. So today we are going to start with sums. Illustration 1 છે માટે આપણે શરૂ કરીશું question number 2 થી. Find Carl Pearson's coefficient of skewness. So we need to find Carl Pearson's skewness. First of all, x is equal to 35, 37, 28. લખાવો મને. 35, 37, 28, 26, 35, 35, 38, and 4040. So x is given to you. Now the formula for Carl Pearson's skewness. First of all, આપણે formula લખીશું. SKP is equal to બે ફોર્મ્યુલા થાય. મોડ મળે છે કે નથી મળતો એને આધારે. હવે આમાં એમઓ અવેલેબલ છે કે નહીં જોઈ લો. તો આમાં આપણે એમઓ કેટલા આવશે? જે ઓબ્ઝર્વેશન હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ ટાઈમ રિપીટ થતું હોય એને એમઓ કહેવાય. So MO is equal to 30. So I will write MO is available. SKP is equal to X bar minus MO. How will you find the X bar? The total of X will be sigma X, and X bar is equal to sigma X upon N. Clear? Now, the next thing we need to find is the coefficient of skewness. And the formula is X bar minus MO upon S. So we need to find S. The formula for S is equal to under sigma X square upon N minus X bar square. મળી જાય? ચલો આ સમ ગણવાનું ચાલુ કરો જાતે હવે. What is your sigma X? And N is equal to? So X bar is equal to? For finding S, we need to find X square. The total will be sigma X square. 35 no square, 37 square, 28 square, 26 square, 35 square, 38 square, and 14 square, 1600. Total 9548.
S is equal to under root sigma x square upon n minus x bar square. 9548 upon 8 minus x bar square. X bar કેટલા હતા? Here the value is 9548 divided by 8. And 34.25 into 34.25. माइनस करके अंडर रूट निकालो. That is your S. अंडर रूट निकाल्या પછી. So your skewness x bar minus MO. X bar 34.25 minus MO 35. So minus 0.75. 4.52. So we will write as distribution is negatively skewed. And coefficient of SKP x bar minus MO upon S. X bar 34.25, MO 35, 4.52. So it will be minus 0.63. તમે બોલ્યા ને 0.6 70 17. आई गयो आंसर सब. किंजल, किरण, पंचिका, अंकिता. अजी now see the question number 3 જે તમારે ગણવાનો નથી but એને જોઈને you need to calculate question number 4. First of all, find Karl Pearson's coefficient of skewness from the following observation. Observation જો કયા છે? The observations are 8, 12, 12, 16, 15, 7, 3, 14, 15, 11 and 10. So there are 3 modes. 8.2 times repeat થાય છે, 12.2 times repeats થાય છે and 15 also repeated for 2 times. So we can say that there is no specific mode. So in question number 3, if MO is not available, then we will calculate SKP, that is Karl Pearson skewness, is equal to 3 into x bar minus M. Clear? So we need to find x bar. X bar कैसे मिलेगा आपको? Sigma x upon n. And M कैसे मिलेगा? N plus 1 divided by tooth observation. M मिल जाएगा. Clear?
तो ये दो चीज मिल जाएगी तो आपको एसकेपी मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एसकेपी ढूंढना है तो फॉर्मूला विल बी 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। सो यू नीड टू फाइंड द एस। और एस कैसे मिलेगा? उसकी फॉर्मूला एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड यूज की तो अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर, सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। चलो, बट यहाँ पे एक्स की अमाउंट देखो सारी स्मॉल है। अगर आपको मीडियन ढूंढना है तो सबसे पहले अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज किया हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर? कितने ऑब्जर्वेशन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So we write the serial number 1 to 12. Now arrange in increasing order. सबसे छोटा 3, then 7, 8 2 times, 10 11 12 2 times, 14 15 2 times and 16. The total will be sigma x. Clear? नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करना आता है। द टोटल विल बी सिग्मा। नाउ m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 6.5 ऑब्जर्वेशन आया। अब हम इस तरह से नहीं करते, हम कैसे करते हैं? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, 7th माइनस, तो 6th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा? प्लस 0.5। 7th वाला कौन सा है? ट्वेल्व माइनस 11, 1 इंटू 0.5, तो m इज इक्वल टू 11.5 हो गया। दोनों मेथड सही है, बट डेसाइल्स क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स में हम इस तरह से गिनते हैं, इसलिए इसके लिए भी मैंने वही फॉर्मूला यूज किया। नाउ स्कीवनेस अगर ढूंढना है तो फॉर्मूला होगी एसकेपी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। बट अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस ढूंढना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? एस। एस भी ढूंढ लिया है, आएगा ये सम। सेम इसी प्रकार से सम नंबर कौन सा है? 4। ये आपको गिनना है, थर्ड होमवर्क है। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग मंथली सेल्स इन 2 डिपार्टमेंट। ये दो अलग डिपार्टमेंट है, एक्स और एफ नहीं है। तो सबसे पहले आप किसका गिनोगे और उसके बाद वाई का, बराबर? चलो कैलकुलेट करो। ओके, नाउ let us understand the discrete series. Discrete series means x and f are given. So here marks will be considered as x and number of student will be f. First of all, we need to check the MO. MO means most repeated observation. You know meaning जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा क्या है? एमओ। तो यहाँ पे 20 से लेके 28 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 22 की। कितनी है? 25। तो एमओ इज इक्वल टू 22 विथ हाईएस्ट एफ। तो एमओ कितना मिला हमें? 22। एक बार एमओ मिल गया इट मीन्स हमारा फॉर्मूला कंफर्म हो गया। यहाँ पे बोलोगे एमओ की जगह जेड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या कंफर्म हुआ? हमें क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसकेपी इज इक्वल टू
एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस। अब यहाँ पे देखो एक्स और एफ की अमाउंट छोटी है, तो एक्स बार कैसे मिलेगा? एक्स बार इज इक्वल टू एफ के टोटल को एन कहोगे और एफ एक्स के टोटल को सिग्मा एफ एक्स। तो एक्स बार मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर? और एस ढूंढना है। एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, हम सिग्मा कहते हैं। बराबर है, यहाँ पे एस की जगह सिग्मा का साइन करूंगा, बिकॉज अभी 11th में भी स्कीवनेस चल रहा है। 11th में हम एस बोलते थे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन ही करेंगे। हम गलती से लास्ट समय मैंने एस लिखाया था, बट हम साइन ही करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन ही लिखेंगे हम। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा? अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? एफ एक्स इंटू एक्स। क्लियर? तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, उसके ऊपर से आप कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस ढूंढ सकोगे। इसी मेथड से ये 5th वाला सम होमवर्क में करना है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिनना है। ओके, तो ये कंप्लीट करो। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 4334 अपॉन 123 माइनस एक्स बार 5.58 स्क्वायर। 4334 अपॉन 123 કેટલા આવે છે? 5.58 into 5.58 કેટલા? माइनस करके अंडर रूट निकालो। 2.02। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एसकेपी x bar minus mo upon standard deviation. X bar is 5.58, mo is equal to हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 and 2.02। 0 पॉइंट माइनस कितना आएगा? 42 upon 2.02। So coefficient of SKP will be 0 point minus 21। हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर?